Okay, so hello and hi everyone. Welcome back to my session, and this is a most awaited session that you needed. You asked for it that, ma'am, please bring civics session, and I have brought this for you. So this is your civics class 7th, and this is from ICSE curriculum. We are dealing civics of class 7, and this is me, Simran Priya, as you know. Now moving on, what chapter we will be discussing now in your history and civics book. This is chapter number 12 and this is part A. आप लोग सोच रहे हो, you might be wondering which book it is. It is Past and Present from Ratna Sagar publication. So the Ratna Sagar publication, we are discussing the Ratna Sagar publication, the Past and Present class 7's ICSE book, and this is the chapter Our Constitution. I would like to say hi to Jani Tiwari, Navya Raj, hello, Neetu Jajodia, hi, and good afternoon to everyone. Please call all your friends and ask them to join as quickly as possible. Am I audible and visible to every one of you? Can you see me? Yes, yes, hi, creation, and you are Angel Verma. So, hello everyone, welcome back. Call all your friends because you know this is going to be a very interesting segment. जहां पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम अपने Constitution. We will talk about India's Constitution, right? Now, before starting the session, let us discuss what are the contents that we are going to discuss. आज का सेशन join आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले what we should do. Okay, am I audible and visible to everyone? Am I audible and visible to everyone? Do you have any correct connection issue? So please tell me, am I audible and visible to everyone? Go ahead and tell me that yes, I am. Now moving ahead, content हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे? We will be discussing introduction to the Constitution. Then we will be discussing roles of the Constitution. उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? We will be discussing roles to the Constitution. Yes, thank you so much. Thank you so much for letting me know that yes, I am audible and visible. Yes, okay. So, I would like to welcome Sujit Gupta, Reena Sinha, Premlata Devi, Janvi. Yes. So, what we will be doing? इसके बाद हम लोग करेंगे roles of the Constituent Assembly. So, ये एक assembly थी जिसने मिलकर क्या किया? मिलकर ये institution बनाया. Okay. So, and the third is the framing of our constitution. Third is किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और कब ये अडॉप्ट किया गया. Now after that we have adoption of our constitution, and when this particular constitution was adopted, I would like to say hello everyone and welcome to the last topic will be the preamble. I am so happy to see you people that you have all joined it. So I would say hello, good afternoon, Navya Raj. Moving ahead, Kamlesh Avinotri, good afternoon. Ram Parvesh Yadav, good afternoon. Janvi Tiwari, thank you so much. That yes, I am audible and visible to you. So, who am I? My name is Simran Priya and you call me Simran Ma'am. I have done my graduation and my masters from Delhi University, and here I am currently teaching in an ICSE school known as Carmel School. Now we will continue and start with our session. As we can see that yes, people have joined in. There are several people joining in. Call all your friends, bacha. Call all your friends. And let's start with this. Now, by mistake, I have written यहाँ पर a period of transition. Okay, it will be our constitution. यहाँ पर क्या होगा? Our constitution होगा. Understood. Moving ahead, this is the introduction to our constitution. सबसे पहले constitution क्या है? Constitution of a country is the fundamental law to that
that country. Fundamental law मतलब क्या होता है? Fundamental. What do we mean by the word fundamental? Fundamental मतलब very important. Fundamental मतलब what do we mean by fundamental? Fundamental means very important. It is constitution. किसी भी country का, to any country, the constitution is very important law to that country. Constitution क्या है? उसका important law है उस country का. Constitution को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? संविधान. संविधान किसी भी देश का उसका फंडामेंटल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से वेरी एसेंशियल लॉ है उस कंट्री का. Understood? Now all the laws must be made according to the principles written in the constitution. और उस कंट्री के सारे लॉज कैसे बनते हैं? सारे लॉज कैसे बनते हैं? उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को देखकर बनते हैं. सो आपका पहला पॉइंट क्लियर है कि ये फंडामेंटल लॉ है कंट्री का और सारे लॉज उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को देखकर ही बनाए जाते हैं. अभी हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं. Okay, now the constitution list rights and duties of the citizen. ये हमें क्या बताती है? It tells us what are the rights और what are the duties of the citizen. क्या एक्चुअल में राइट्स है सिटीजन का? क्या अधिकार है हमारे पास? हम लोग क्या क्या अधिकार के साथ परफॉर्म कर सकते हैं? राइट्स दैट मीन्स अगर जैसे कि you have the right to have education, right? This is our basic human right. एक इंसान का बेसिक राइट होता है कि उसे पूरा एजुकेशन मिले, राइट? एक अच्छा एजुकेशन मिले. That's why I have come with this platform ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम मिल पाए. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स द राइट, ये हमें बताता है कि हमारा अधिकार क्या क्या है. एंड इट टेल्स अस द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन और सिटीजन को क्या क्या करना पड़ता है. Understood? Moving ahead, it gives power to the government. Second important thing, constitution government को जो उसके सिटीजन पे रूल करती है या उसे बताती है, मैनेज करती है, उसको पावर देता है कि एक गवर्नमेंट के अंदर में क्या क्या पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं. Understood? So these are the important points. First is the constitution is the fundamental that is very important necessary law of the country. और सारे all the laws are made according to the principles written in the constitution. थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स और ड्यूटीज बताता है सिटीजन का. इसके अलावा इट टेल्स अस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. थैंक यू. गुड आफ्टरनून नव्या, परी एंड अंजलि जजोडिया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. कॉल ऑल योर क्लासमेट्स, ऑल योर पीपल, बिकॉज वी आर डूइंग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम हिस्ट्री. दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिविक्स, हिस्ट्री सिविक्स बुक. द सिविक्स वाला पार्ट का सबसे पहला चैप्टर है और आपके हिस्ट्री सिविक्स बुक में ये 12 नंबर chapter hai that we are dealing with. Moving ahead, India gained independence from the Britishers on 15th August 1947. India को आजादी कब मिली थी? India got independence. India ब्रिटिशर्स से आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में. क्लियर है ये बात? आप लोग सब जानते हो ना. जब इंडिया आजाद हो गया, अब एक कंट्री को चलाना है. ब्रिटिशर्स तो चले गए, ब्रिटिशर्स हम लोग को चला रहे थे. उसके पहले मुगल्स चला रहे थे, उसके पहले दिल्ली सल्तनत थी. अब इंडिया पूरी तरीके से आजाद हो चुका है. ओके, नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? देयर वॉज एन अर्जेंट नीड, एक बहुत अर्जेंट आवश्यकता आ गई टू ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस
टू क्या करने की जरूरत पड़ गई, जैसे ही इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत आन पड़ी कि द पीपल शुड ले डाउन, कि उन्हें क्या लिखना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंट्री, कि क्या इंडियंस को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, मूविंग अहेड टू गाइड गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री, एंड किस तरीके से हमारी सरकार चलेगी। अगर हम लोगों ने इंडिपेंडेंस ले लिया है तो हमारी सरकार अब किस तरीके से काम करेगी, सो दैट वी आर गोइंग टू नो, एंड फॉर दिस ये एक बहुत जरूरत आवश्यकता आ गई, और इसके वजह से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया गया इंडिया का, वो कॉम्प्राइज करता है, कॉम्प्राइज करना मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, ओके, बिकॉज इट वाज डिमांडेड कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं कि हम लोगों ने चाहा कि हमें अभी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। आई वुड लाइक टू से हाई टू क्रीमी क्रिएशंस एंड हेलो मुकेश कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Now, our constitution prepared after a great deal of discussion. हमारा जो constitution बना वो ऐसा नहीं ओवरनाइट बन गया बच्चा, समझिए इस बात को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लिखे गए हैं वो ओवरनाइट नहीं बने हैं, बल्कि उस पे बहुत सारे डिस्कशंस किए गए हैं, डिस्कशंस किए गए लोगों के बीच में, और एक लोग ने बैठ के नहीं बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या थे? कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में हेल्प करते हैं। Okay, so it was who, group of representatives who prepared it, formed the Constituent Assembly. अब आप समझिए, पहला बात कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिस्कशन से बना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये एक लोग ने नहीं बनाया है बल्कि एक ग्रुप ने बनाया है, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, दिस ग्रुप इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस ग्रुप इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Understood everyone? Got this very clear everyone? Now, moving ahead, what is the role of the Constituent Assembly? Now, let us discuss the role of the Constituent Assembly कि क्या आखिर इस Constituent Assembly का जहाँ group of representatives थे जो Constitution बना रहे थे, आखिर इनका रोल क्या था, ठीक है। The Constituent Assembly was elected in 1946. 1946 में ही Constituent Assembly बना दी गई, ठीक है। Okay, now for a specific purpose of framing a constitution, क्यों ये बनाया गया? ये बनाया गया ताकि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर पाए, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बना पाए, इसलिए एक ग्रुप ऑफ पीपल की असेंबली इलेक्ट की गई 1946 में, ठीक है। नाउ कॉम्प्राइज्ड मेंबर्स इस ग्रुप में ओके, सो इस ग्रुप में क्या हुआ कि it comprised members belonging to different political it comprised members belonging to different political parties, communities and region of India. ये क्या था? ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से इसमें लोग थे, इसमें लोग थे डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग थे, और डिफरेंट रीजन, अलग अलग इंडिया के रीजन से लोग आकर इसका मेंबर बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अंडरस्टूड? Okay, now let us discuss कि constituent. Wait 1 minute. I would be coming. Okay.
ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी? कॉन्स्टिट्यूएंट, अब जैसे कि हमारी एक बच्ची ने कहा है, अंजलि जजोडिया ने कहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was elected. In the book only the year is given when the constituent assembly elected, but I know the date too. Okay, okay bacha, Anjali is saying that she knows the date when the constituent assembly was formed. Now bacha, you have written 9 December, but it was when constituent assembly कब बना? 1946 में. It was 6 December 1946 जब constituent assembly बना. Understood? Moving ahead, but it's very good that you know the date. थोड़ा सा बस आगे पीछे हो गया. Understood? So इसमें कौन कौन से members थे? अलग अलग जगह के मेंबर थे. ओके जानवी, आई विल गो वंस अगेन. दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड 1946 में. इसका स्पेसिफिक पर्पस था कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था. ठीक है. अब इस ग्रुप ऑफ पीपल में कौन कौन से थे? इनके मेंबर्स थे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के थे. ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस का मेंबर बनाएगा या सिर्फ दूसरे मेंबर्स बनाएंगे, बल्कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिलकर बनाने वाले थे. अलग अलग कम्युनिटीज के लोग मिलकर बनाने वाले थे और अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट से लोग आकर इसको बनाने वाले थे. Understood? Moving ahead, among them, अब चलिए जानते हैं who were these people? Who were these people जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे? Okay, now this was Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru, as you all know who Pandit Jawaharlal Nehru is. So पहला नाम जो Constituent Assembly के मेंबर थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. सेकंड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. You can see the picture and remember the face. Sardar Vallabhbhai Patel. Third was Maulana Abdul Kalam Azad. Maulana Abdul Kalam Azad. Moving on, we had Dr. Rajendra Prasad, Dr. B.R. Ambedkar, Sri Vishwanath Das. ओके, राजेंद्र प्रसाद थे, आई एम सॉरी, बी आर अम्बेडकर थे. फिर हमारे साथ विश्वनाथ दास थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. एंड दिस पर्सन इन बिटवीन द सरदार बलदेव सिंह. पर्सन इन बिटवीन इज सरदार बलदेव सिंह. ही वाज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड श्री फ्रैंक एंटोनी. दिस पर्सन श्री फ्रैंक एंटोनी एंड एच.पी. मोदी. These were the some of the male people who were the part of the Constituent Assembly. We have named some 9 members, right? And there were women members also. ऐसा नहीं था सिर्फ मेल मेंबर्स थे, बल्कि विमेन मेंबर्स भी थी, लाइक सरोजनी नायडू. यू ऑल नो सरोजनी नायडू. नाउ यू मस्ट ऑल्सो नो रेणुका रे. she was also a freedom fighter who was at that time part of making our constitution. Then we had Rajkumari Amrit Kaur. Moving ahead, we had Hansa Mehta and we had Suchitra Kriplani, Vijay Lakshmi Pandit. So these were the amazing women, okay, who were the part of the framing of the constitution. And I'm so proud of you. Yes, bacha, you are telling this right. Anjali, I'm so proud of you. Every one of you, all the 12 members, I am very proud of you. And all the members who will be watching this after the live session, I am also proud of you guys that aap log समय निकालकर you are focusing on your studies and you want to know about the constitution. Okay, now moving ahead, the framing of our constitution. How was our constitution framed? How was our constitution made? Okay, now moving ahead, the Constituent Assembly appointed a drafting committee of 6 members. ठीक है. अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप लोग समझ गए, ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे. उन्होंने क्या किया? एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसमें 6 लोग मेंबर थे और वो लोगों के पास क्या था कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पहला कॉपी ड्राफ्ट करेंगे, पहला कॉपी बनाएंगे.
Understood? Now, under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ramaji Ambedkar, under the chairmanship of Bhimrao Ambedkar, they prepared a draft of our constitution. Draft मतलब क्या होता है? Not the actual constitution, जो original constitution है ये नहीं, बल्कि एक rough draft, original लाने से पहले जो पहले एक draft आता है वो है rough draft. ओके सो वो ड्राफ्ट इन्होंने 6 मेंबर्स ने मिलकर बनाया. Understood? Now they prepared a draft of our constitution, views and opinions of the citizen of India taken into consideration. ठीक है? अब यहां पर समझिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसमें कितने लोग थे, 6 मेंबर्स थे. अंडरस्टूड. उसका चेयरमैन, उनके चेयरमैन कौन थे, B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामाजी अम्बेडकर, और उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का. इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था कि ये 6 लोग बैठ के अपना मनमर्जी कुछ भी लिख रहे थे. नो, दे टुक द ओपिनियन एंड व्यूज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया इनटू कंसीडरेशन. उन्होंने व्यूज और ओपिनियन, जो लोगों के व्यूज और ओपिनियंस थे उसको भी कंसीडरेशन में लिया एंड देन ही फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, now the suitable feature for what the constitution of the other countries was also incorporated. Now, इसके साथ साथ क्या हुआ कि दूसरी कंट्रीज के जो अच्छे suitable features थे वो भी लोगों ने लेकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाला. ओके हमने क्या किया, हमने बाकी कंट्रीज के भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और हमने उसे अपनी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में उसके भी पॉइंट्स निकाल के जो हमें अच्छे लगे वो डाले. किस किस कंट्री से हमने लिया है, यूके, यूएसए एंड आयरलैंड. वी हैव टेकन सम पॉइंट्स फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूशंस. Okay, I would like to say good afternoon to Lavanya. Thank you so much for visiting, bacha. Moving ahead, who was B.R. Ambedkar and what was his role? ठीक है. अब बी आर अम्बेडकर आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, अम्बेडकर जयंती आप लोग बनाते हो. बी आर अम्बेडकर, जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम बी आर अम्बेडकर का नाम सबसे पहले आता है. एंड ही इज ऑल्सो नोन एज कि उन्होंने दलित के लिए लड़ाई करी थी. उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें सोसाइटी में इक्वालिटी लानी होगी. Right. So B.R. Ambedkar, popularly known as Baba Saheb, as some of my children have written, yes, Janvi, he was known as Baba Saheb Ambedkar also, right? And he is called as the father of Indian Constitution, क्योंकि under his chairmanship Constitution was drafted, right? So he is known as father of Indian Constitution. He was a popular lawyer. वो क्या थे by profession? He was a popular lawyer and a social reformer. और वो क्या थे? Social, सामाजिक reformer थे, जो समाज के साथ काम करते हैं, सामाजिक reforms लाते हैं, वो थे ये. As a chairman of the drafting committee, और ये drafting committee के chairman भी थे. So as a chairman of the drafting committee, Dr. Ambedkar defined the vision and the goal of the constitution. और क्योंकि ये उस drafting committee के member थे, chairman थे, तो इन्होंने उस constitution का vision कि किस चीज पे constitution को focus करना चाहिए और कैसा constitution संविधान हमारा बनना चाहिए उस पे इन्होंने फोकस किया. अंडरस्टूड. नाउ ही इंश्योर्ड, उन्होंने इंश्योर किया इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया कि व्हाट आर आवर बेसिक फंडामेंटल राइट्स. Okay, now the basic right of a citizen is
known as the fundamental rights. Fundamental rights हमारे क्या क्या है, हमारे जैसे कि freedom to speak, freedom to study, right to have an education, freedom to live, ये सारे हमारे क्या है, basic rights है. That is freedom to speech and expression, freedom to freely move throughout the country, कि हम country में कहीं भी freely move कर सकते हैं. Freedom to reside in any parts of the country, हम country की किसी भी part में जाकर रह सकते हैं. So ये सारी जो fundamental हमारे freedoms और हमारी rights हैं, उस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा. Understood? Which specifically abolished untouchability. जिसने स्पेसिफिकली किस पे फोकस किया, उसने फोकस किया कि किस तरीके से अबॉलिश करना मतलब टू मूव और टू रिमूव अनटचेबिलिटी, कि ये भावना दैट सम पीपल आर अनटचेबल्स, कि उन्हें छुआ नहीं जा सकता, दे आर अनटचेबल पीपल, ये भावना को उन्होंने हटा दिया, उन्होंने मिटा दिया. ओके, गारंटीड इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये गारंटी दी इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि सारे नागरिक को क्या मिलेगी, ऑल द सिटीजन विल हैव इक्वल राइट्स. Okay, now he prohibited discrimination of any kind. और किसी भी तरीके का भेदभाव, discrimination based on gender, based on caste, based on community, based on religion, इस तरीके का भेदभाव he prohibited that. Understood? Moving ahead, now comes the adoption of our constitution. कब हमने अपने constitution को adopt किया, ठीक है ना. 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इस दिन क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फॉर्मली इस दिन पास किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा. यस, इक्वल राइट्स टू एवरीवन रिसाइडिंग इन द कंट्री. यस जानवी, यस. मूविंग अहेड नाउ, 26 नवंबर में 1949 में इंडियन का जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो पहली बार पास हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से. ओके, फिर उसके बाद उसके 2 महीने बाद ही, सॉरी 2 महीने बाद ही, यस, दिसंबर एंड जनवरी, इन जनवरी ऑन द सेम डेट, in January on the same date in 1950 the constitution came into force. और इस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया. The day we celebrate Republic Day. Why we celebrate Republic Day? To celebrate that how our constitution came into being on this day, right? So इस दिन से हमारा संविधान पूरे देश वर्ष में लागू हो गया, was came into force. India was declared a sovereign democratic republic. और इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया कि ये एक sovereign democratic republic है. ठीक है, अभी हम लोग इस तीनों वर्ड का मतलब करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक. आप लोगों को अभी मैं बताऊंगी कि क्या मतलब है सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का. पहले यहाँ पर शॉर्ट में कर लेते हैं. सोवरेन मतलब होता है जब आप इंडिपेंडेंट हो, जब आप फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो और आपके ऊपर किसी का इंटरनल और एक्सटर्नल किसी का भी पावर आपके ऊपर नहीं, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है किसी का भी. सो इंडिया बिकेम फ्री कंट्री, राइट? सो दैट मीन्स sovereign means independent. Yes Janvi, you are absolutely correct. Now second comes the democratic means जब people के पास power है, when the power lies in the hand of the people and they are the one who will elect the government. जब पीपल के पास सारा पावर होता है और वो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक. अंडरस्टूड? एंड व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक मींस जब सारे सिटीजन्स इक्वल हैं, व्हेन ऑल सिटीजन्स आर इक्वल. ओके, जिसमें
ओके, जहां पर सारे सिटीजन्स इक्वल है और वो कोई भी ऑफिस में बैठ सकते हैं. ही कैन सिट इन एनी ऑफिस. ओके. Yes, yes, Anjali, sovereign means free from outside control. Is it correct? Yes, yes, sovereign मतलब बच्चा बता, सिर्फ outside नहीं, inside also. कोई किसी का कंट्रोल आप में नहीं रहेगा तो आप सोवरेन बन जाओगे. ये शब्द का मतलब है इंडिपेंडेंट, कि आपके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या बन जाते हो? सोवरेन बन जाते हो. डेमोक्रेटिक मतलब जब पीपल के पास पावर है गवर्नमेंट को चुनने का. रिपब्लिक मतलब जब सिटीजन ऑफ इंडिया वो कोई भी ऑफिस में बैठ सकते हैं, सबके पास वो राइट है कि वो कोई भी ऑफिस में बैठ सकते हैं. एक आम आदमी प्रेसिडेंट बन सकता है, किसी भी ऑफिस को अज्यूम कर सकता है. Okay, now later the word socialist and secular came into being. और इसके बाद इंडिया became, बाद में जाकर ये दो शब्द भी जोड़ा जाता है और इंडिया became a sovereign democratic republic socialist secular country. Okay, socialist मतलब क्या? जब there is no inequality between income and status. किसी भी इनकम के बीच में इनइक्वालिटी नहीं है. अगर आप सेम काम कर रहे हो तो आपको सेम पे मिलेगा. एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्टेटस, कि आप अगर आपका कोई स्टेटस नहीं है, सारा इंसान एक जैसा है. ऑल इंडियंस आर इक्वल एंड सेम इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? सेक्युलर. सेक्युलर मतलब क्या होता है बच्चा? जब हमें वी हैव द फ्रीडम टू एक्सरसाइज आवर रिलीजन, सारी सिटीजन को इंडिया में अपना अपना धर्म फॉलो करने का, उसे स्प्रेड करने का हक है, अधिकार है. Right? So, yes, you have understood the meaning of sovereign, democratic, republic, socialist, and secular. Okay? Okay. Now, on 26th January, it is celebrated every year on 26th January. हर साल हम लोग 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? We celebrate Independence Republic Day, right? हम लोग क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे. और इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड. As the Indian Constitution was adopted, chairman of the Constituent Assembly. अब चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the chairman of the Constituent Assembly. चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी कौन थी? अभी मैंने आपको बताया. चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी कौन थी? ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? इट वॉज बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर. यस, वेरी गुड, बी आर अम्बेडकर. और हमारे चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही अडॉप्ट किया गया, इस दिन ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया. और इन्हें कैसे इलेक्ट किया गया था? ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. उन्हें पहला प्रेसिडेंट बना दिया गया इंडिपेंडेंट, आजाद इंडिया का. ओके, नाउ कम्स द प्रीएम्बल. कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने समझ लिया, सबने सारे डाउट्स क्लियर हैं आपके. अब हम लोग चलते हैं प्रीएम्बल में. व्हाट इज अ प्रीएम्बल? Okay, now preamble is a short introduction of the constitution. Preamble क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें ऊपर बात कर रहे हैं. जैसे कि इट इज रिटन इन योर प्रीएम्बल लाइक एज वी. आप पढ़ो अपने प्रीएम्बल को, आपके बुक में भी लिखा हुआ होगा. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949,
go hereby adopts, enacts and give to ourselves the constitution. अभी हम लोगों ने किया था, कब हमें मिला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 19 कब 1949 में, और 26 जनवरी 1950 में इसको इनैक्ट किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया. वेरी गुड. Right. Yes, very good, bacha. Very good. I'm so proud of you. I'm so proud of all of you that yes, Dr. B.R. Ambedkar सही जवाब, and you know the entire constitution. So हमारे constitution में लिखा है कि हमारा देश क्या है, एक sovereign democratic republic है, और यहाँ के citizen के पास क्या है, they will have justice. उनको हर तरीके का justice मिलेगा, इंसाफ मिलेगी. They have liberty कि वो हर तरीके का belief, faith या वर्शिप कर सकते हैं. दे हैव इक्वालिटी अमंग देमसेल्फ, दे हैव फ्रेटर्निटी कि हर सिटीजन, हर एक इंडिविजुअल का अपना डिग्निटी है, एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, और नेशन एक साथ यूनाइटेड है. ओके और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे पास किया था 26 नवंबर 1949 में, एंड इट गेव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. प्रियम्बल एक छोटा इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का. Now, ideas of the preamble was borrowed from the Constitution of the United States of America. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है कि सॉरी, कॉन्स्टिट्यूट प्रियम्बल हमारा किससे हमने बोरो किया था? प्रियम्बल हमने बोरो किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से. हमने किससे बोरो किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया था. ओके, सो वी बोरोड इट फ्रॉम देम. Okay, moving ahead, the preamble help us in understanding our constitution. Preamble हमें मदद करता है कि हम अपने संविधान को और अच्छे से समझें. We understand our constitution more beautifully. कैसे? It by pointing out the sources of the constitution. कहाँ से वेरियस चीजें हमने अडॉप्ट की है. जैसे मैंने आपको बोला, हम लोगों ने यूके से, यूएसए से एंड आयरलैंड से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं. तो हम लोगों ने कहां से, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ द स्टेट. स्टेट मतलब क्या है बच्चा? स्टेट मतलब वो वाला स्टेट मत समझ लीजिएगा. स्टेट मतलब, इस शब्द का मतलब होता है गवर्नमेंट. इस शब्द का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट. सो एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ द स्टेट दैट द कंट्री विल बी गवर्न्ड बाय. किस तरीके की गवर्नमेंट से एक कंट्री गवर्न की जाएगी, उस गवर्नमेंट का क्या नेचर होगा, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. एंड देन कम्स द स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स which the constitution aims to provide and implement. और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऑब्जेक्टिव्स देता है कि क्या हम एम कर रहे हैं, व्हाट वी आर एमिंग एट, और क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है. Understood? Now moving ahead, the preamble is not justiciable. Preamble क्या है हमारा preamble justiciable नहीं है. इसका मतलब the preamble is not capable to decide by the court of law. कि preamble कुछ भी चीज अपने में डिसाइड नहीं कर सकता. preamble cannot decide anything by the court of law. court of law के थ्रू वो डिसाइड नहीं कर सकता. yes जानवी, वेरी गुड. कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता. इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. आप कुछ भी चीज इन्फोर्स नहीं कर सकते प्रियम्बल के थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ में. इट कैन बी यूज्ड ओनली टू इंटरप्रेट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये सिर्फ हमें क्या बताता है? ये हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में क्लियरली अंडरस्टैंड कराता है, और हम इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? ओके. Now, moving forward, the sources
of the Constitution. What are the sources of the Constitution? The preamble states, preamble क्या हमें बताता है कि we the people of India, आप लोगों ने अभी अभी preamble देखा, we the people of India adopt, enact and give to ourselves this constitution. हम इस जो लोग हैं, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के भी, जो हम लोग इस इंडिया के सिटीजन हैं, हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को कबूल करते हैं. वी अडॉप्ट दिस, हम लोग इसे मानते हैं. वी विल इनैक्ट ऑन दिस, और हम लोग इसी को मानकर वी विल एक्ट, हम लोग अपना आगे का एक्ट परफॉर्म करेंगे. वी विल परफॉर्म आवर एक्ट्स फर्दर एंड वी गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने खुद को कॉन्स्टिट्यूशन उपहार में दिया है. Okay, moving ahead, this means that the ultimate authority lies with the people of India. इसका मतलब क्या है? Ultimate authority किसके पास है? The ultimate authority is with the people. क्योंकि आप देखिए पहला ही लाइन preamble का बताता है, we the people of India, हम जो इंडिया के देशवासी हैं. Okay, so this interpret meaning and aspects. इंटरप्रेट मतलब बच्चा, इंटरप्रेट करना मतलब किसी चीज को आप, जैसे कि अगर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझाया, आपने क्या समझा, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन. तो किसी चीज को इंटरप्रेट करना मतलब उसे समझना. ओके, एंड एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स मीन्स, एस्पेक्ट मतलब डिफरेंट पार्ट्स कि डिफरेंट फॉर्म्स, उसका क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या एस्पेक्ट्स है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या चीजें हैं उसमें, है ना, फीचर्स, द कैरेक्टरिस्टिक. ओके, नाउ अल्टीमेटली अथॉरिटी लाइज विद द पीपल. सो ये हमें ये बताता है कि हमारी अथॉरिटी किसके पास है, हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है. पीपल गवर्न देमसेल्व्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और लोगों के पास एक्चुअल पावर है, और लोग क्या करते हैं, वो वही गवर्न करते हैं. हम लोग कौन है? वी आर the constitution, we are the people. Democracy भी क्या है? For the people, by the people, of the people, right? So we are governed by ourselves and we choose our representative. जैसे कि आपके क्लास में, आपका क्लास का पूरा पावर एक एक बच्चे में बेस्ड रहता है, हर बच्चे के पास पावर है, और उनके बीच से अगर एक मॉनिटर बन जाता है तो ये इन बच्चों ने चुनकर बनाया है इस मॉनिटर को. ये इसके पास अलग से कोई ताकत नहीं आ जाती है. कल को हो सकता है कि आप बन जाओगे, कल को ये बन जाएगा. सो दिस इज a representative of the people. कि अगर मुझे अपने आप को, जैसे कि हम लोग बहुत लोग हैं, पीपल तो बहुत है ना, अगर मेरी आवाज को गवर्नमेंट की कान तक ले जाना है तो हमें अपना क्या चाहिए होगा, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होगा. जैसे कि अगर आपको क्लास में कुछ बोलना होता है तो अगर आप एक साथ सभी लोग बोलने लगोगे तो मैम नहीं सुन पाएगी, राइट. लेकिन अगर आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दो और आप उसे बता दो कि देखो ये हमें प्रॉब्लम है, प्लीज आप मैम को बता दीजिए, तो वो रिप्रेजेंटेटिव विल कम टू द मैम एंड दैट वन टू वन कॉन्वर्सेशन विल हैपन एंड दैट विल बी क्लियरर, राइट. उसी तरीके से जो एक्चुअल पावर है वो पीपल के पास है और वो अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. Yes, very good, Janvi. A person who has been chosen to act and to speak is the representative of the people, of the government. Yes. Now the nature of the state. अभी मैंने बोला था मैं आपको सारे वर्ड्स का मतलब बताऊंगी. So first is the sovereign. So हमारे preamble में जो लिखा है कि we are the sovereign democratic republic, and also there is two words added बाद में, the socialist and the secular. कौन सा वर्ड ऐड हुआ था? सोशलिस्ट और सेक्युलर. ये जो दो वर्ड है इस सब का मतलब क्या है,
राइट. सो सोवरेन मतलब होता है, दिस मीन्स दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. इंडिया क्या है, पूरी तरीके से आजाद कंट्री है. इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, कोई भी बाहरी, या इंटरनल मतलब इनसाइड, कोई भी बाहर या अंदर के पावर के कंट्रोल में ये नहीं है. इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल और इंटरनल पावर. No other countries can interfere in India's internal matter. और बाहर की कोई कंट्री इंडिया के अंदरूनी मामले में, जैसे कि अगर हमारा कुछ अंदरूनी मामला है, हमारा पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है, तो बाहर की कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसका कुछ बोलना नहीं है. दैट मीन्स वी आर अ सोवरेन नेशन. Understood? Second verse is the socialist. Socialist. Now this word was added in the preamble. ये word जो था वो preamble में 1976 में add हुआ था. That is the 42nd Amendment Act. What is an amendment? Amendment मतलब होता है when there is a change. जब हम क्या लाते हैं, कोई भी change लाते हैं constitution में, that is an amendment. Yes. Yes, absolutely correct. The two words were added, the socialist and the secular. Amendment means an act that brings about the change in that is given in a constitution. जो हमारा constitution बना था, उसमें अगर हम कुछ चेंज लाएंगे बाद में, सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे अमेंड करना पड़ेगा. सो ये 42nd जब अमेंडमेंट हुआ, पहला अमेंडमेंट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, सो 42nd जब अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये शब्द को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. यस. Yes, very good, Janvi. Yes, this is a process of making change. Now, the main purpose was to end inequality of income and status. इसका main purpose socialist को add करने का क्या था कि कोई भी inequality को ये रोकना चाहते थे. Inequality of income and status. Okay, aim to provide decent standard of living, and what they aimed at कि वो एक decent standard of living पे aim कर रहे थे कि there should be a decent, a बहुत decent standard of living होना चाहिए. सबका income में ये नहीं कि आप एक ही काम कर रहे हो लेकिन आपको वो income किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए. लोगों के बीच में समानता होनी चाहिए, equality होनी चाहिए, and they can have a beautiful decent standard of living. Indian Constitution therefore aim at providing equal opportunity to all. Right? Like हम लोग aim क्या करते हैं कि हम लोग equal opportunity दें सभी को. Like me, what I am doing through YouTube channel, I am giving equal opportunity to all you people. You can always come in and watch my recorded session. तो आपको क्या होगा, इनकम मतलब बेटा सैलरी, इनकम जो आप कमाते हो, दैट इज इनकम, राइट. सो आपको क्या मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि सबको मैंने सेम समझाया है. देन यू मस्ट परफॉर्म. जब आप खरगोश को खरगोश के साथ दौड़ाओगे तब एक अच्छा रेस होगा. खरगोश को कछुए के साथ दौड़ाओगे, देन देयर इज नो इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट. मूविंग अहेड, द टर्म सेक्युलर. India is a secular country. India is a secular nation. ये भी जो word था वो add किया गया था preamble में 22nd Amendment Act के साथ. Secularism मतलब होता है to protect. The state protects all religion equally. जो स्टेट है, द गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करेगी सारे धर्म को इक्वली. दैट विल प्रोटेक्ट ऑल द रिलीजन, सारे धर्म को, वेदर इट्स इस्लाम, वेदर इट्स हिंदुइज्म, वेदर इट्स क्रिश्चियनिटी, वेदर इट्स सिखिज्म, वेदर इट्स जुडाइज्म, सारे धर्म को वो प्रोटेक्ट करेगी. नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वंस रिलीजन. और गवर्नमेंट की आंखों में कोई भी अलग नहीं है, चाहे आप कोई भी धर्म से हो, आप इस्लामिक हो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप कोई भी धर्म से आ रहे हो, गवर्नमेंट की आंख में आप इक्वल रहोगे. ये हमारे प्रियम्बल में लिखा है. एंड इंडिविजुअल हैव फ्रीडम टू प्रोफेस, practice and spread their respective religion. और लोगों के पास फ्रीडम है that
दैट कि वो अपना क्या कर सकते हैं, वो अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन को, और वो बढ़ा सकते हैं, वो स्प्रेड भी कर सकते हैं अपने रिलीजन को. There should be, the artsy life has said there should be an equal opportunity for all, each and every person should have as great or small an opportunity as the next one. There should not be the unfair, unequal, superior community. Absolutely right, bacha. So beautifully written. Artsy life. Thank you so much. Yes, you are absolutely correct. हमें सबको equal opportunity मिलनी चाहिए. हमें कोई भी unfair, injustice नहीं करना चाहिए दो लोगों के बीच में. ये हमारे preamble में लिखा है. Democratic means a government chosen by the people. जहां पर एक government by the people choose होगी उसको democracy कहते हैं. And हर 5 साल में एक general election होता है in which people vote to elect their government. जिसमें लोग अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, वो वोट करके अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं. सो दैट इज डेमोक्रेटिक. नाउ कम्स इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950. इंडिया कब में रिपब्लिक हुआ? 1950 में. रिपब्लिक एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर ऑफिसेस ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी इनहेरिटेड. ऐसा नहीं है कि एक आईएएस का बच्चा आईएएस हो जाएगा. द ऑफिस ऑफ एन IAS will be given to his child. नहीं, ये नहीं होगा, उसके चाइल्ड को नहीं मिलेगा, बल्कि देयर विल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी कि आईएएस का ऑफिस अगर खाली हुआ तो हम सब लोग उस ऑफिस के लिए एक साथ एग्जाम दे सकते हैं. एंड हो सकता है कि एक टीचर का बच्चा आईएएस बन जाए. राइट. सो इट इज दैट कि ऑफिस जो कंट्री का है वो इनहेरिट नहीं किया जाएगा, एक पिता से बच्चे में नहीं जाएगा, पास ऑन नहीं होगा. एवरी इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू बी इलेक्टेड टू एनी ऑफिस ऑफ द कंट्री. और हर इंडियन सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो हर ऑफिस इंडिया में, हो सकता है कि एक कोई भी एक बहुत ही कम पैसा कमाने वाले का बच्चा कैन सिट इन ऑफिस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, कैन सिट इन ऑफिस ऑफ अ प्रेसिडेंट. दे कैन बी इलेक्टेड अगर उनमें वो चाहत है, वो दे आर रनिंग फॉर इट. राइट. सो इट इज नो ऑफिस इन आवर कंट्री इज इनहेरिटेड. नाउ with this, I would like to end up the meeting. Now, what is the difference between sovereign and republic? बच्चा, सोवरेन मतलब होता है इंडिपेंडेंट. सोवरेन मतलब क्या होता है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपके ऊपर नो कंट्रोल किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का आपके ऊपर, द कंट्री के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. ओके. एंड what you asked that what is the meaning of republic? रिपब्लिक मतलब कि कोई भी ऑफिस जो है, नो ऑफिस इज इनहेरिट करके आप खानदानी ऑफिस आपका नहीं चला सकता कि आप प्राइम मिनिस्टर का बच्चा प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा, नहीं. आईएएस का बच्चा आईएएस ही बनेगा, नहीं. इनहेरिटेड. सो क्या होगा? इट इज कि ऑल ऑफिस में ऑल सिटीजन बैठ सकते हैं, वो उसके लिए एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, वो बैठ सकते हैं. ओके. एम आई क्लियर नाउ? Am I clear now? Now, thank you so much. I would be now ending up my session. Thank you so much for joining in. I thoroughly enjoyed the session. Please write in the comment box if you want me to bring up anything. If you want me to have a session on anything, you can always write in the comment box and let me know that how did you like my session. And please like the video if you like the session, and do subscribe to it, and also pass on to the people who need this session, because we are promoting equal opportunity and the right of education for all. So promote the video, promote the platform to each and every people that you think is in the need of this platform. Understood? तो आप जाइए और इसे फैलाइए जितने भी लोगों को आपको लग रहा है कि जरूरत है इसकी. Thank you so much. Now I will be ending up the session. We will be meeting again once again